السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ دنیا بھر کے لگ بھگ 20 لاکھ عازمین حج نے حج بیت اللہ کا رکن اعظم وقوف عرفہ کر لیا۔ کل 10 ذی الحج کو سعودی عرب میں عید الاضحیٰ منائی جائے گی اور عازمین حج کریں گے قربانی۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں بدستور تعطل کا شکار، اسرائیلی دفاعی افواج نے غزہ پر جاری رکھے حملے۔ تازہ حملوں میں مزید 34 فلسطینی شہید، 71 عام باشندے ہوئے زخمی۔ 9 مہینوں سے جاری نسل کشی کی جنگ میں بھوک کو ہتھیار کے طور پر کیا گیا استعمال، شمالی غزہ پٹی کی آبادی بھوک سے مر رہی ہے، فلسطینی میڈیا دفتر نے ظاہر کی فکر مندی۔ اسرائیل سے جنگ کے دوران فلسطینیوں میں مسلح جدوجہد کی تائید میں اضافہ، حماس کی مقبولیت بڑھ گئی، موجودہ فلسطینی صدر محمود عباس کی مقبولیت میں آئی کمی، تازہ سروے میں انکشاف۔ اور وزیراعظم مودی کا G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد اٹلی کا دورہ مکمل، پوپ سمیت عالمی لیڈروں سے ہوئی ملاقاتیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ دنیا بھر سے لگ بھگ 20 لاکھ عازمین حج مناسک حج کے مراحل کے تحت آج عرفات میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ مسجد نمرہ سے حج کا خطبہ ہوا اور عازمین حج کا اعظم ترین رکن وقوف عرفہ مکمل کر لیا۔ عازمین حج عرفات کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج سننے کے بعد نماز ظہر اور عصر خصر کے ساتھ ادا کی۔ حرم شریف مکہ مکرمہ کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر موئقلی نے خطبہ حج دیا۔ خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 50 زبانوں میں نشر کیا گیا۔ شیخ ماہر موئقلی نے امت مسلمہ خاص طور پر فلسطین کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ سعودی عرب کی حکومت نے حج کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے ہیں۔ کل 10 ذی الحج کو سعودی عرب میں عید الاضحیٰ منائی جائے گی اور عازمین حج قربانی کریں گے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل 3 دنوں تک جاری رہے گا۔ اس طرح حج بیت اللہ کی تکمیل کی جائے گی۔ اور اب بڑھتے ہیں فلسطین سے جڑی خبروں کی جانب۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں بدستور تعطل کا شکار ہیں، جبکہ اسرائیلی دفاعی فوج غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنان سے متصل اسرائیلی سرحد پر بھی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ عینی شاہدین نے کہا کہ غزہ پٹی کے مختلف حصوں خاص طور پر وسطی علاقوں میں صبح سویرے متعدد حملے کیے گئے، جبکہ وسطی شہر دیر البلح میں واقع الاقصی شہداء ہاسپٹل میں 11 سالہ بچے کی لاش کو منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جنوبی اسرائیل کی جانب راکٹ فائر کیے گئے تھے، جس کے بعد اس علاقے پر بمباری کی گئی۔ لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے جنگجوؤں کی جانب سے اسرائیلی فوجی اہداف پر راکٹ داغے جانے سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہے۔ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے اسرائیلی کارروائی میں مارے جانے والے اس کے کمانڈر کی ہلاکت کا بدلہ تھے۔ جواب میں پھر ایک مرتبہ اسرائیل نے بے رحمانہ حملے شروع کر دیے۔ وزارت صحت فلسطین نے اس دوران اطلاع دی کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی قابض فوج نے مزید 34 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور ان حملوں میں 71 عام شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی ظالمانہ اور غاصبانہ پالیسی اور مسلسل 9 مہینوں سے جاری نسل کشی کی جنگ میں بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شمالی غزہ پٹی کی آبادی بھوک سے مر رہی ہے۔ فلسطینی سرکاری میڈیا دفتر نے عالمی برادری اور عالمی اداروں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگی جرائم اور غزہ کے عوام کو بھوکا مارنے کی اسرائیلی مجرمانہ پالیسی کے خلاف آواز بلند کریں۔ پیش ہے تفصیلات۔ فلسطین کے سرکاری میڈیا آفس نے خبردار کیا کہ صہیونی غاصبانہ پالیسیاں اور مسلسل 9 ماہ سے جاری نسل کشی کی جنگ میں بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے نتیجے میں شمالی غزہ پٹی کی آبادی بھوک سے مر رہی ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ہمارے عوام کے خلاف فاشسٹ مجرم قابض ریاست کے ہاتھوں 3300 سے زیادہ اجتماعی قتل عام کے واقعات سامنے آئے، جس میں ہزاروں افراد کو شہید کر دیا گیا اور 1 لاکھ کے قریب فلسطینی باشندے زخمی ہیں۔ فلسطین کی 20 لاکھ سے زیادہ آبادی کو جبری بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ فلسطینی حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ پٹی میں قحط کے ظہور کے ساتھ ساتھ انسانی تباہی تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے۔ خاص طور پر غزہ شمالی غزہ کی گورنری میں قابض اسرائیل کی جانب سے کراسنگ کی بندش اور امدادی ٹرکوں کی محدود تعداد اور اشیاء خوردونوش کی سپلائی میں پابندی کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔
गासिब सहयूनी काबिज दुश्मन की जानिब से इस वहशियाना जारहियत के दौरान भूख, प्यास और तिब्बी इमदाद से इनकार एक हथियार के तौर पर एक साबित शुदा और पेचीदा जंगी जुर्म है, जो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्ल कुशी के सबसे बड़े जुर्म का लगातार सिलसिला है। फ़लस्तीनी सरकारी मीडिया दफ्तर ने आलमी बरादरी और आलमी इदारों से इस बात का मुतालबा किया कि वो जंगी जराइम और गाज़ा के अवाम को भूखा मारने की इसराइल की मुजरिमाना और बदतरीन पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और उधर दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि सलामती कौंसिल से मंजूर होने वाले जंगबंदी मुसवदे पर हमास की तजवीज़ करदा तरामीम के बाद अमेरिका इस मामले पर आगे की राहें तलाश कर रहा है। वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने कहा कि हमास की बाज़ तरामीम मामूली नौयत की हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है, ताहम कुछ तरामीम बेरब्त हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका ने गाज़ा में जंगबंदी के लिए अमेरिकी मुसवदा सलामती कौंसिल में पेश किया, जिसे मंजूर किया गया था। जैक सलिवान ने कहा कि मिस्र और कतर के साथ बिलवास्ता मुज़ाकिरात की नौयत ऐसी है कि इसमें वक्त लग सकता है। इस दौरान तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सलामती कौंसिल पर जोर दिया कि इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर किया जाए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ग्रुप 7 इजलास के मौके पर इल्ज़ाम लगाया कि गाज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की राह में हमास रुकावट है। जंगबंदी के मुजवज़ा मंसूबे के तहत इब्तदाई मरहले में लड़ाई को रोकना, गाज़ा से कुछ यरगमालियों की रिहाई, इसराइल के ज़ेर हिरासत कुछ फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक फ़लस्तीनियों में मुसल्लह जिद्दोजहद की तायीद में इजाफा हो गया है। अरब मीडिया के मुताबिक सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च की जानिब से कराए गए इस सर्वे के मुताबिक फ़लस्तीनियों में इसराइली कब्ज़े के खात्मे और फ़लस्तीनी रियासत के हुसूल के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद की तायीद में इजाफा हुआ। मगरबी किनारे और गज़ा पट्टी में किए जाने वाले सर्वे में 54% अफराद ने मुसल्लह जिद्दोजहद की हिमायत की। यह शरह गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में 8% ज़्यादा है। सर्वे के मुताबिक फ़लस्तीनियों में फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास की मकबूलियत में 6% इजाफा हुआ, जबकि 40% ने हमास की भरपूर अंदाज में तायीद की है। और दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जमात फ़तह की मकबूलियत सिर्फ 20% है। ख्याल रहे कि यह सर्वे गाज़ा में इसराइली जारहियत यानी जंग शुरू होने के 8 महीने के बाद किया गया है। और बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तुर्किया की वज़ारत दिफा ने कहा है कि तुर्की और अमेरिका ने F-16 जंगी तैयारों के फ़रोख्त के माहदों पर दस्तखत कर दिए हैं। वाशिंगटन ने मुज़ाकिरात के बाद $23 बिलियन के माहदे की इजाज़त दे दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंगी जहाज़ खरीदने के माहदे पर दस्तखत हो गए और दोनों अतराफ़ के वफूद तफसीलात के लिए मुज़ाकिरात कर रहे हैं। इस माहदे के तहत तुर्किया को 40 नए F-16 तैयारे दिए जाएंगे, जबकि इसके मौजूदा बेड़े में 79 जेट तैयारों को अपग्रेड भी किया जाएगा। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने गुज़िश्ता हफ़्ते तुर्किया की जानिब से नए जंगी तैयारों की खरीदारी में एक अहम पेशरफ्त का खैर मकदम किया और उन्हें सिर्फ करीबी इत्तेहादियों और शराकतदारों के लिए दस्तियाब अब तक के जदीद तरीन तैयारे करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद नई दिल्ली वापस हो गए। मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मोदी का ये पहला गैर मुल्की दौरा था। इन्होंने पोप समेत कई अहम आलमी कायदीन से इस दौरान मुलाकातें की, जिनमें अमेरिका के सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और दीगर भी शामिल हैं। इससे कबल मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था कि हम आलमी मसाइल को हल करना चाहते हैं और बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की हौसला अफजाई भी करना चाहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप की शिरकत मरकज़ी तवज्जो बनी रही। तुर्क सदर उर्दगान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुव्वम और दीगर लीडरान भी मुज़ाकिरात में मसरूफ़ देखे गए। यूक्रेन का तनाज़ा हल करने के लिए नया अमन फार्मूला पेश करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया कि यूक्रेन तनाज़ा रूस से मुखलिसाना बातचीत के बगैर हल नहीं होगा। पुतिन ने कहा कि रूस तारीख का साने से भरा सफ़ा पलट कर यूक्रेन यूरोप से ताल्लुकात बतदरीज बेहतर करना चाहता है, लेकिन अगर यूक्रेन और मगरब बातचीत की पेशकश को ठुकराते हैं तो वही खून खराबे के ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि रूस पहले रुख से अमन चाहता है, लेकिन मगरब न सिर्फ रूस के मफादात को नज़रअंदाज करता रहा बल्कि यूक्रेन को रूस से मुज़ाकिरात करने से भी रोक रहा है। यूक्रेन का तनाज़ा हल करने के लिए नया अमन फार्मूला पेश करते हुए रूसी सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज रूस से इल्हाक करने वाले यूक्रेनी इलाकों से मुकम्मल तौर पर निकल जाए और यूक्रेन नाटो में शमूलियत से इनकार करे तो इसके बाद मॉस्को जंग बंदी कर देगा और बातचीत का आगाज़ कर दिया जाएगा। सदर पुतिन ने तवक्को जाहिर की कि यूक्रेन अपने कौमी मफाद में इस नतीजे पर पहुंचेगा कि बातचीत की शुरुआत करे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
दुनिया भर के लगभग 20 लाख आज़मीन हज ने हज बैतुल्लाह का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा कर लिया। कल 10 ज़िलहज को सऊदी अरब में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और आज़मीन हज करेंगे क़ुरबानी। गजा में जंगबंदी की कोशिशें बदस्तूर तातुल का शिकार, इसराइली दिफाई अफवाज ने गजा पर जारी रखे हमले। ताज़ा हमलों में मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद, 71 आम बाशिंदे हुए ज़ख्मी। 9 महीनों से जारी नस्लकुशी की जंग में भूख को हथियार के तौर पर किया गया इस्तेमाल। शुमाली गजा पट्टी की आबादी भूख से मर रही है। फ़लस्तीनी मीडिया दफ्तर ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी। इसराइल से जंग के दौरान फ़लस्तीनियों में मुसल्लह जद्दोजहद की तायद में इजाफ़ा, हमास की मकबूलियत बढ़ गई। मौजूदा फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मकबूलियत में आई कमी, ताज़ा सर्वे में इंकशाफ। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का G7 सरबराह इजलास में शिरकत के बाद इटली का दौरा मुकम्मल, पोप समेत आलमी लीडरों से हुई मुलाकातें। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।